Let us discuss another question related to liquidation of a company. I'll read out the question first and then we will discuss about the new points that are covered in this question. Adarsh Manufacturing Company Limited went into voluntary liquidation on 1st January 2016. The liquidator is to be paid remuneration at 3% on the amount realized on sale of assets and 2% on amount distributed to shareholders. The liquidator sold out all the assets of the company. Company's position was as under. The cash realized on the sale of asset is rupees 7 lakhs. Liquidation expenses 12,600. Creditors, which include salaries for 1 month, 8,400. 7,000 6% preference shares of rupees 30 each, on which dividend is paid up to 31st December 2014. Now, 14,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 9 per share called and paid. General reserve is there and profit and loss balance is there. Under Articles of Association of the company, the preference shareholders have a right to receive 1/3 of the surplus remaining after repaying the equity share capital. Prepare liquidator's final statement of account, right? So this is the question, which although appears to be simple, but there are a few new points that are covered in this question. What are those? One thing is that preference shares are there along with equity shares, and the preference dividend is in arrears. So whenever we have both equity shares and preference shares, we know that since the name itself suggests preference shares means that they will be given preference. So preference as to what? That means whenever the dividend will be paid on these shares, the first right will be of the preference shares. So if the company has to pay the dividend, first the dividend will be paid to preference shares. If the company has to repay the capital, suppose the company closes its business and now comes the turn to repay the capital, जब ये पैसा लौटाने की बारी आएगी तो पहले किसको राइट दिया जाएगा? फर्स्ट विल बी द प्रेफरेंस गिवन टू प्रेफरेंस शेयर्स, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि आप उन्हें प्रेफरेंस देंगे, उनको प्राथमिकता देंगे. तो प्रेफरेंस शेयर्स को पे कर दिया आपने, जो भी उनका ड्यू था, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर्स के पास जाएगा, राइट? Now there is another small point which has to be understood here. वो ये है कि let us say हमने प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर दिया, हमने प्रेफरेंस की कैपिटल को भी पे कर दिया. अब अगर कोई अरियर में है प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब इन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर पहले से कुछ ड्यू चला आ रहा है, क्या उसको भी पहले पे करेंगे और बाद में इक्विटी शेयर्स की टर्न आएगी? The answer to this question is no. ऐसी प्रेफरेंस उनको हमने नहीं दी है. प्रेफरेंस सिर्फ 2 टर्म्स में दी है कि जब डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड पे करेंगे तो पहली प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगी, और जब कैपिटल को रीपे करेंगे तो पहली प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलेगी. लेकिन अगर कोई डिविडेंड अरियर्स में है प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो पहले उसको पे करें, ये प्रेफरेंस हमने उन्हें नहीं दी है. अनलेस एंड अनटिल द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज. अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा है कि उनको डिविडेंड अरियर डिविडेंड के लिए भी प्रेफरेंस मिली है, तो आप पहले अरियर भी पे करोगे, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर्स को पे किया जाएगा. बट इफ देर इज नथिंग मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन इन दैट केस द अरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड आर नॉट गिवन एनी प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर कैपिटल. इसका क्या मतलब है कि पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल को रीपे करोगे, उसके बाद अगर पैसा बचेगा, अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो हम ये अरियर दे सकते हैं. लेकिन ये नहीं है कि पहले प्रेफरेंस कैपिटल भी पे करनी है, नॉर्मल डिविडेंड भी देना है प्रेफरेंस शेयर्स पे, और उनका जो अरियर में चल रहा है वो भी सारा पे करना है, उसके बाद इक्विटी की टर्न आएगी. तो ये अरियर से पहले इक्विटी की टर्न आएगी. अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करने के बाद भी पैसा बचता है, तब हम जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसके ऊपर डिविडेंड पे कर सकते हैं. फाइन.
इफ़ द आर्टिकल्स आर साइलेंट, आर्टिकल में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल्स में क्लियरली मेंशनड है कि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी प्रेफरेंस देनी है, तो उस केस में फिर हम पहले अरियर भी पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के, और फिर इक्विटी कैपिटल की टर्न आएगी, राइट। और मान लीजिए सब कुछ हमने पे कर दिया, सभी का ड्यू लौटा दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया, तो वो सरप्लस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में दिस क्वेश्चन परटेन्स टू सरप्लस। अब उस सरप्लस का क्या करें, अब उसके ऊपर किसका राइट होना चाहिए। अब अगेन अ क्वेश्चन की शेयर्स तो दो तरह के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं और इक्विटी शेयर्स भी हैं। तो इस सरप्लस के ऊपर आइडली तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, क्योंकि वो ही हैं जिन्होंने हमेशा जो लॉस बियर किया है कंपनी का। तो जो भी पैसा अंत में बचता है सबको लौटाने के बाद, उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। लेकिन अगर आपके जो आर्टिकल्स हैं उसमें ये मेंशन्ड है कि उस लास्ट में बचे सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनको कि हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, तब आप उस लास्ट में बचे हुए सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर्स को भी कुछ हिस्सा दे सकते हैं, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस। अब स्टेप वाइज हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हैं। जो कैश रियलाइज्ड है ऑन द सेल ऑफ असेट्स, द अमाउंट इज 7 lakhs दैट वी हैव ऑलरेडी फिल्ड हियर। और जो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है वो 7 लाख के ऊपर कितना देना है, 3%, राइट। तो 3% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स, अमाउंट हमें दिया हुआ था उसके ऊपर हमने रेम्यूनरेशन निकाला 3%, 7 लाख पे, वो आ गया 21,000। अब जो शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, शेयर होल्डर्स को जो पैसा देना है उसके ऊपर कितना रेम्यूनरेशन देना है हमें लिक्विडेटर को। सो वी हैव टू पे अ रेम्यूनरेशन ऑफ 2% on the payment made to shareholders, right? So payment made to shareholders means what? अब शेयर होल्डर्स तो दो तरह के हैं, इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस, अगर सिर्फ ये लिखा होता कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है उस पर हमें रेम्यूनरेशन देना है लिक्विडेटर को, तो हम सिर्फ इक्विटी को लेते। अगर लिखा है शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट की है उस पर रेम्यूनरेशन देना है, तो हम टोटल अमाउंट लेंगे जितना भी प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को जो पे करना है उसके ऊपर, राइट। सो नाउ लेट अस सी कि ये वाली वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि हमने एक्चुअली कितना पे किया है इक्विटी और प्रेफरेंस को, और वो हमें तब पता चलेगा जब हम सारे माइनस कर लें बाकी के खर्चे कि इतना अमाउंट बचेगा पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को जितनी पेमेंट की है उसके ऊपर आपने रेम्यूनरेशन देना है लिक्विडेटर को। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट की है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कितना रेम्यूनरेशन देना है। इसलिए पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, रफ कैलकुलेशन वर्किंग्स अपनी, कि शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बचा। सो वी विल शो द वर्किंग नोट्स एंड वी विल शो दैट व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो टोटल वैल्यू हमारे पास थी कैश अवेलेबल और द अमाउंट अवेलेबल जो था दैट वाज 7 lakhs। इस 7 लाख में से आप जब सभी को पेमेंट कर चुके होंगे, जितने भी ड्यूज होंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, राइट। तो इसमें से आपको क्या क्या माइनस करना है, सबसे पहले तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। वो रेम्यूनरेशन के दो भाग हैं, एक तो वो है जो असेट्स के ऊपर मिला है उसको, और दूसरा जो पेमेंट होगी शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगी उस पर तो अभी हम नहीं बता सकते, इसलिए हम अभी सिर्फ कौन सा लिखते हैं जो हम अभी कैलकुलेट कर पाए हैं, 21,000, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 12,600। तो ये वैल्यूज हम यहाँ भी लिखते जाते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर 12,600। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो अनसिक्योर्ड होते हैं लेकिन उन्हें प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट में। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 8,400 जो सैलरी ड्यू है, जितना भी एम्प्लॉयज़ को ड्यू होता है वो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो क्रेडिटर्स थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू आपको दी हुई थी 95,200। तो 95,200 में से 8,400 हमने घटा दिया क्योंकि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और बाकी के बच गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर कितने रह जाएंगे, वो 86,800, राइट।
देन ये टोटल दिया हुआ था आपको और इसमें बताया हुआ था कि 8,400 जो है वो सैलरी ड्यू है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया। 95,200 को दो भागों में बांट दिया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 8,400 और अनसिक्योर्ड 8,000 है, तो दोनों ही अनसिक्योर्ड, पर इसको पहले प्रेफरेंस देनी है। सो 86,800 बाकी के अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट। तो इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। इन वैल्यूज को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, 8,400 एंड 86,800। अब बाकी जो बचा पैसा होगा, अगर हम इन सभी का सम ले लें तो ये टोटल मिला के आपके जो माइनस करना है हमें खर्चा, वो है दिस 1,28,800। इसको अगर आप माइनस कर दें तो हमारे पास कितना पैसा बचता है? वी आर लेफ्ट विद 5,71,200। ठीक है। सो बैलेंस लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स दो तरह के हैं यहाँ पे आपके पास, प्रेफरेंस भी है और इक्विटी भी है। और अब आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर डिविडेंड भी ड्यू है, अरियर में है डिविडेंड। वो कैसे पता चलता है आपको? क्योंकि जो आपने लास्ट डिविडेंड पे किया है वो 31 दिसंबर 2014 तक है, और जो कंपनी है वो लिक्विडेशन में कब जाती है? 1 जनवरी 2016 को। इसका मतलब 31 दिसंबर 2015 तक पूरा एक साल, 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक पूरे एक साल का जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, वो भी अभी ड्यू है, वो पे करना बाकी है। तो अब एक पॉइंट ये है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे उसमें जो लिक्विडेटर है उसकी रेम्यूनरेशन भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे हमने खाली छोड़ी हुई है जगह। आप देख सकते हैं कि जो भी पेमेंट जाएगी शेयर होल्डर्स को उसमें लिक्विडेटर का भी रेम्यूनरेशन होगा, कितना? 2%। ठीक है। तो अब पहली बात तो ये देखिए कि ये जो अमाउंट बचा है हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए, इसमें जो है वो लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन भी शामिल है। तो पहले हम वही रूल लगाते हैं, अगर हम 100 रुपये पे करेंगे लिक्विडेटर जो है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स की पेमेंट अगर 100 रुपये होती है तो हमें उस पर कितना रेम्यूनरेशन देना है? लिक्विडेटर को 2 रुपये देने हैं उस पर। ठीक है। तो अब आपकी इसका मतलब टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी? टोटल पेमेंट विल बी 102। 100 रुपये तो शेयर होल्डर्स को देना है और उस पर 2 रुपया आपको रेम्यूनरेशन देना है लिक्विडेटर को, तो ये टोटल पेमेंट हो गई 102। तो अगर टोटल पेमेंट आपकी टोटल पेमेंट इज 102, देन रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर इज ₹2, and if total payment is 1, remuneration to liquidator will be 2 divided by 102, और if total payment is, अब टोटल पेमेंट हमारे लिए ये बची है, ये टोटल पेमेंट जाएगी शेयर होल्डर्स को भी और इसमें रेम्यूनरेशन भी शामिल है लिक्विडेटर का, तो यही हमारी टोटल पेमेंट होगी। तो अगर टोटल पेमेंट हमारी 5,71,200 है तो रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा लिक्विडेटर का? 2 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 5,71,200। इसको हम पहले यहाँ से वो माइनस करते हैं जो हमें लिक्विडेटर को पे करना है, लेस रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर। इसकी वैल्यू आएगी, द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर इज 11,200। तो ये जो हमने निकाला है 2 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 5,71,000 डिवाइडेड बाय 102, ये जो वैल्यू आई है आपकी ये होगी 11,200। तो ये 11,200 हमने यहाँ से पहले माइनस कर दिया। तो रेम्यूनरेशन दे दी लिक्विडेटर को कौन से अमाउंट पे? जो अमाउंट पे करेंगे शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट पे करेंगे? अब वो बच जाएगा 5,60,000। ये टोटल पेमेंट थी, रेम्यूनरेशन प्लस जो शेयर होल्डर को जाएगा उसको मिला के, फिर उसमें से हमने रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया, तो ये क्या रह जाएगा? बैलेंस ये वाला था लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स प्लस रेम्यूनरेशन, है ना। तो इसमें से रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया
तो बैलेंस लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर्स, सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बच गया वो रह जाएगा। इसमें से हम पहले क्या पे करेंगे, इसमें से फर्स्ट वी आर गोइंग टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितनी पेमेंट जाएगी, कैपिटल कितनी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास 2,10,000, 2,10,000 माइनस करेंगे, वो कैपिटल है। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या हम उनको डिविडेंड भी जो अरियर में डिविडेंड चल रहा है वो भी देंगे। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि पहले तो हम नहीं देंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा आर्टिकल में कोई रूल नहीं है तो हम उन्हें पहले प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करेंगे, पहले हम किसको रीपे करेंगे, इक्विटी कैपिटल को, ठीक है। लेकिन अगर इक्विटी को पे करने के बाद भी हमारे पास पैसा बच गया तो हम उनका डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले आप ये देखिए कि टोटल अमाउंट है हमारे पास 5,60,000 और जो इक्विटी कैपिटल है वो कितनी है, इसमें से अगर आप 2,10,000 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे। सो वी विल बी लेफ्ट विद द स्टिल इनफ अमाउंट जितना कि हम पे कर सकते हैं इक्विटी कैपिटल को, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का अमाउंट सिर्फ 1,26,000 है, ठीक है। तो अगर हम 5,60,000 में से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2,10,000 कैपिटल दे दें और फिर हम इसमें से 1,26,000 इक्विटी शेयर्स को भी दे दें तो फिर भी हमारे पास पैसा बच जाएगा। इसलिए हम इसका मतलब यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो बचा हुआ पहले का अरियर का डिविडेंड है वो पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद भी पैसा बच रहा है, ठीक है। तो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये है कि सीधा नहीं दे देना उनको डिविडेंड, पुराना जो बचा हुआ है वो तभी चेक करके देना है कि क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद भी हमारे पास पैसा बचेगा या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि पहले हम प्रेफरेंस कैपिटल पे करें फिर इक्विटी कैपिटल पे करें, दोनों को पे करने के बाद फिर भी हमारे पास पैसा बचेगा, इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, जो उनका डिविडेंड बनता है 1 साल का उनका डिविडेंड बनता है 12,600, क्योंकि जो आपका परसेंटेज है वो आपको गिवन था 6% है, राइट। तो 6% जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पे तो आपका बन जाएगा 12,600 पूरे 1 साल का है अरियर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इन दोनों की पेमेंट जब हम कर देंगे सो दैट टोटल अमाउंट विल बी 2,22,600। फिर लेस और क्या माइनस करेंगे, इसमें से इक्विटी कैपिटल बच गई। अब इक्विटी का पैसा लौटाना है, इक्विटी का पैसा कितना था 1,26,000, 1,26,000 वो भी आप माइनस कर देंगे यहाँ से। तो ये टोटल जब हम माइनस कर देंगे उसके बाद फिर बच गया पैसा हमारे पास 2,11,400। तो ये जो 2,11,400 है ये क्या कहलाता है, सरप्लस। अब वैसे तो इस सरप्लस के ऊपर सिर्फ किसका राइट है, सबको पे करने के बाद जो पैसा बच गया उसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है। लेकिन अगर आर्टिकल्स कोई और कंडीशन देते हैं तो आपको उसे फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो सरप्लस है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ द सरप्लस, मतलब इसका 1/3 प्रेफरेंस शेयर्स को मिलना चाहिए। तो अब ये जो लास्ट में बच गया सरप्लस है इसको आप 2 भागों में बांटेंगे, 1/3 और 2/3। तो 1/3 जाएगा किसके पास, प्रेफरेंस, और 2/3 जाएगा किसके पास, इक्विटी, राइट। तो इसका 1/3 अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 70467 और 2/3 होगा 1,40,933। तो यहाँ पे अब ये सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। ये 2% किसका निकालना है अब ये भी पता चल गया हमें। 2% होगा जो पेमेंट जाएगी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिलाकर, क्योंकि इसमें लिखा था जो भी शेयर होल्डर्स को पेमेंट, तो शेयर होल्डर्स तो सभी हैं, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया था 5,60,000 इनकी पेमेंट होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये भी कैलकुलेट कर ली थी रेम्यूनरेशन 11,200। तो अब ये टोटल मिला के कितनी रेम्यूनरेशन हो गई 32,200। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिला के हमने कितना पे किया 2,22,600। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पे किया 1,26,000। और फिर जो सरप्लस बच गया उसमें से प्रेफरेंस के पास जाएगा 70467
और इक्विटी के पास जाएगा 1,40,933। इस तरह से ये पूरा पैसा डिवाइड होगा। अब जो पेमेंट सरप्लस की हो रही है उसके ऊपर कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा लिक्विडेटर को। वैसे तो आप कहेंगे कि ये पैसा भी तो शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है, तो इस पे क्यों नहीं हमने रेमुनरेशन कैलकुलेट किया, क्योंकि सरप्लस के ऊपर हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं रेमुनरेशन, और ये पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे अपने जो आंसर लिखेंगे उसमें, ठीक है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो द पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स, बट जो उनका एक्चुअल ड्यू था उसके ऊपर आपने रेमुनरेशन कैलकुलेट करनी है, सरप्लस वाले अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट नहीं करनी, राइट। सो दिस इज 7 lakhs। इस तरह से ये डिवाइड हुआ है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।